Trinity B1 ISC1 4 skills test. CELT secure English language tests. B1 English test ISC1 skilled worker, health and care worker, scale up worker, student visas. Yes, hello Danish, can you hear me? Hello, Baji. Hi, how are you today? Can you hear me properly? जी Baji. Okay, let's get started with our session for today. Is there anything that you have done by yourself? No, Baji. Yeah, hello, This one, have you ever done this one before? no. ये आज करना Baji. Let's start. Read text A and explain it to me. What does it say? Read from Eva. Yeah. Send 11 November 2014. Time 19 Baji. 1937, that's the time. There's a time, but कितना 6. Yeah. 6:37 to editor eveningnews.com.uk. Subject River Mill River Mill. River Mel. Dear editor, the River Mel cause health problem in the city, so we need to take action. Also, the other local factories have a sport putting waste into the river. The People Factory is still breaking population laws and should have to pay big fine. The mud of the river bed need to be taken away because it's populated with criminal population are scam to say this because it's bringing job to the city, but it is observed that the paper company should pay. Also, people need to educate. Drink bottle and plastic bag would not be such a problem if people refused or recycle them. Yours, Eva भाई के Strass. Spell? STRAUSS. STRA. RAUSS. STRAUSS. STRA. Eva, I don't know why. STRAUSS. It doesn't matter, it's just the name of a person. Okay, don't even have to read this. Continue further. Strauss. Sorry? Strauss. Strauss. There's no need to read this because the main text is this. Anyways, what do you understand of this text?
rivers cause health problem in city. इसमें रिवर मिल जो है हेल्थ की प्रॉब्लम है सिटी में, हमें एक्शन लेना चाहिए। और अदर लोकल फैक्ट्रीज जो हैं ये बंद करें पुटिंग वेस्ट इनटू द रिवर। रिवर में ये जो ये रिवर में गंद फेंकते हैं जी। Hmm. द पेपर फैक्ट्री इज स्टिल ब्रेकिंग पॉपुलेशन। ये पॉपुलेशन को कम कर रही है, लॉ के खिलाफ है और इनको फाइन होना चाहिए। um, the mode of river bed between Hmm. uh, Okay, uh, that's fine. ये Mhm. ये मुड का क्या मतलब है जी? MUD। Mud, मिट्टी को mud बोलते Sorry? हैं। Mud is uh, मिट्टी, soil is mud. so तो ये है मजी इस लाइन का क्या? द मोड ऑफ द रिवर बेड नीड टू टेकन। इनको मजी मुझे समझ आ गया, एक्सप्लेन नहीं करना आज। It's fine. It's all right. Let's move further. This is a diagram that shows an increase or decrease in certain things. Can you read it? It's about river toll. The river toll yearly report on the results of population. Waste from factories up 6.4%. Hmm. Organic O2 level in the water down 3.5%. Hmm. Fish number down 3%. Water bright down 2.4%. Rubbish up 14%. Criminals from form in riverbed up 5.5%. Hmm. ये पढ़ना भाजी। This exam paper has 4 tasks. Hmm. 4 tasks, complete all tasks. That doesn't matter. Anyways, we kind of see in here that the most of the problem that is caused to river tolling is the rubbish. That's 14%. That's a big issue. Okay, now C. The the city is getting million from the government to improve the river Lam. How should it send the money? Paul, I'll always throw that the river would be great for kicking, Kayaking. kayaking. Do you know it's a yellow boat that people use and then they you told me. I think you were the person who told me. No, it was somebody else. Okay, river themes. I'll show you a photo. Mhm. I'm sure you have seen it. It's an adventure sport. People like to do it in the lakes and rivers. Yes, have you ever seen it before? Yes, but Okay. All right then. kicking. So how about a water sport center from people to do things like that? Marcus, it would be great to see people using the river for transport.
like in the old days. Hmm. Ivana fair sport, a lot of people going the river to the river, even a little lighting along the riverbank would help people to feel safe. Hmm. Alex, I'd like to see one of the old factories because museum of the city's industrial history. Uh, जी इंजा इंजा It's just a name, you can say in J. Alex and some quality waterside cafes would attract visitor too. Someone Nibna, I agree security camera to project people from criminals. Let's enjoy. Hopefully, they close the Westwood place. That would mean less litter on the ground. Hmm. Hmm. What do you understand of this? हम्म, हम्म, इसमें बता रहा है कि जो रिवर में लोग ना ये लाइक वो जो स्मॉल बोटिंग वगैरह होती है वो यूज करते हैं। यही है ना भाजी। हम्म। वो ये कह रहे हैं कि अगर रिवर को इम्प्रूव करना है, वैसे तो उनको पहले मिलियंस मिल रहे हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए, लेकिन अगर उसको बेहतर करना है तो कैसे किया जाए? ठीक है, तो कैसे बेहतर किया जा सकता है? पहला वो ये कह रहे हैं कि अगर इसमें वाटर स्पोर्ट्स सेंटर बन जाए तो तब भी बेहतर हो सकता है। दूसरा कहता है कि अगर यहाँ पे वाटर ट्रांसपोर्ट यूज करना शुरू कर दे तब भी लोग जो है ना वो उसका बेहतर ख्याल रख सकते हैं। फिर एक कहता है कि मे बी अगर यहाँ पे लोग जो फैक्ट्रीज हैं उसको एज अ म्यूजियम यूज करते हैं तब भी लोगों को याद रहेगा कि गंद नहीं करना पानी के करीब, ठीक है, रिवर्स को गंदा नहीं करना। फिर ये कहता है कि अगर वाटर साइड कैफेज बन जाए, ठीक है। फिर ये कहता है कि अगर फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स क्लोज हो जाते हैं तो तब भी गंद नहीं करें। तो वो ये बातें कर रहे हैं आपस में कि कैसे रिवर लैम्प को बेहतर किया जा सकता है। एक बार वो एक कहता है कि लाइटिंग होनी चाहिए, सिक्योरिटी कैमरास होने चाहिए लोगों की सिक्योरिटी। ये Okay, now text D. Green City News. The yearly big cleanup on the riverside. Vico 15 students packed up rubbish from the bank of the banks of the river बैंक्स किनारे को and कहते हैं। banks of the rivers and several local companies go together to clean the river of uh, freight bikes and other large item we correct educate correcties So what in Spanish? CRI Criticize. I think it's criticize supermarket on this side sometime, but they let staff have time of work to plant trees along the river. So well done to them. Science student Martina Killer took part in the cleanup. She told us, in the 5 years since this started,
you can see the change. The river's clean again now, not black like it used to be. Plants are growing on the bottom of the river again, and we'll see a lot more fish and birds, I'm sure. क्या मतलब है? कि इसको इन द ईयर बिग क्लीन अप ऑन द रिवर, इसको एक दफा साल में क्लीन करना चाहिए। 50 जो है करना स्टूडेंट्स चाहिए, नहीं किया जाता है। किया जाता है। 50 बंदे जो हैं स्टूडेंट्स रबिश को जो है अ, अ, इसके लाइक कोनों को 50 बंदे साफ करें एंड फिर जो है और सराइवल लोकल कंपनीज टुगेदर सारे मिल के करें। ये है भाई जी के बाइक एंड अदर आइटम सिटीजंस भाई जी ये थोड़ा आप एक्सप्लेन करें। इसमें वो ये बोल रहा है कि इन द ईयरली बिग क्लीन अप दे हैव पिक्ड अप द रबिश फ्रॉम द बैंक्स ऑफ द रिवर। जो किनारे हैं उसके वहां से उन्होंने गंद उठाया है, ठीक है, जैसे समुद्र को साफ करने के लिए या रिवर को साफ करने के लिए होता है। एक और प्लान उन्होंने डिवाइस किया, दैट इज टू प्लांट मोर ट्रीज अलोंग द रिवर। और साइंस स्टूडेंट्स जो हैं ये मार्टिना कैलर took part in the cleanup, and वो उसने बोला कि in the 5 years since this started, जब से 5 साल से उन्होंने ये शुरू किया, लेकिन बहुत बड़ा चेंज नजर आया, ठीक है। And the river is clear now again, not black and like it's used to be. Plants are growing on the bottom of the river again, and we'll see a lot more fish and birds. जो कह रही है कि सफाई की वजह से रिवर काला नहीं हुआ। काला नहीं हुआ तो पौधे नीचे उगना शुरू हो गया, जैसे वो ग्रीन ग्रीन से होते हैं पानी के नीचे। तो अगर पौधे हैं तो फिर मछलियां और बर्ड्स भी आ जाएंगे। ठीक है। ओके भाई जी। ओके, अब आपने क्या करना है, पहले आपने पेपर है ना पास पड़ा हुआ पीडीएफ में, पहले आप ना मुझे देखो, मैं सवाल समझा देते फिर आपको करना आ जाएगा। पढ़ो जरा 26 to 30 ऊपर क्या लिखा है टाइटल में वो बताओ। Now, the note below contain 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 information from the text on page 4 to 5. Find an extra number word or passage minimum 3 word from text AD to complete the missing information in passage 26 to 30. Write the extra number word or passage on the line below. Line below. ठीक। अब देखो, इस सवाल को समझने के लिए ना थोड़ा सा दिमाग चाहिए, जिसका है वो तो कर, और आपका डेफिनेटली है, ठीक है। देखो, इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड इंडस्ट्रियल पोल्यूशन जो है ना, उसकी एग्जांपल दी हुई है एग्जामिन उसके पैसेज में दी हुई है। इंडस्ट्रियल वेस्ट का मतलब है जो फैक्ट्री से वेस्ट निकलता है, उसका उसके सामने लिखा हुआ है वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज। ईजी स्टैंड करता है एग्जाम्पल गिवन, किसके लिए स्टैंड करता है? सॉरी भाई किस ईजी, ईजी, ईजी का मतलब है एग्जाम्पल गिवन, एग्जांपल जी जी ठीक है। जी जी। अच्छा, अब देखो, आपने क्या करना है कि एग्रीकल्चर पोल्यूशन की क्या एग्जाम्पल उसने दी हुई है, आपने वो लिखनी है। दोनों पैराग्राफ्स में दी हुई है, ए में भी दी हुई है, बी में भी दी हुई है, लेकिन बी में देखोगे तो ज्यादा जल्दी नजर आ जाएगी। फिर डंपिंग लार्ज डोमेस्टिक आइटम्स ई जी फ्रिजेस एंड बाइक्स, ये हम
ढूंढ नहीं सकते क्योंकि ये उन्होंने खुद ही ग्राफ में से देख के एग्जाम्पल लिख दी हुई है। आपने मुझे घर के कूड़ा करकट की एग्जाम्पल देनी है बीच में से ढूंढ के। घर के कूड़ा करकट की। हाँ जी, टेक्स्ट ए में लिखी हुई है कि उसकी क्या एग्जाम्पल हो सकती है। ठीक है, ये ऊपर लिखा हुआ होगा, आपको दिखा देती हूँ, उसमें से करके दिखाओ। ये देखो, इसमें ये अगर ले लेते हैं, इसमें करना है कंप्लीट द मिसिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल आपको यहाँ से मिल गई थी, एक करके दिखा देती हूँ, एक खुद करना। उसने बोला इंडस्ट्रियल पोल्यूशन जो है उसकी एग्जाम्पल उसने दी हुई है वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज, यही है ना? ये देखो, अब वो कह रहा है कि मुझे एग्जाम्पल दो एग्रीकल्चरल पोल्यूशन की। क्या एग्जाम्पल उसने दी हुई है पैराग्राफ के अंदर? आप बताओ, चलो बी से ही ले लेते हैं आंसर। तो एग्रीकल्चरल पोल्यूशन की क्या उसने दी हुई है एग्जाम्पल? यहाँ पे ये नजर आ रहा है, ये ट्रक, जी जी ये फील्ड्स नजर आ रही है यहाँ पे। ठीक है, जी जी। ये एग्जाम्पल उसने दी हुई है। अब आप मुझे इसमें से वर्ड्स में से चूज करके बताओ कि एग्रीकल्चरल पोल्यूशन की क्या एग्जाम्पल। क्रिमिनल फ्रॉम द फॉर्म। ध्यान से पढ़ो, क्रिमिनल नहीं है। और बैटरी बाजी। हम्म, देखिए केमिकल बाजी फ्रॉम द फॉर्म। ये केमिस्ट्री वाला ही है, केमिकल्स है। केमिकल्स, केमिकल फ्रॉम। आप ही केमिस्ट्री को स्कूल में केमिस्ट्री कहते थे, नहीं, केमिस्ट्री कहते होते थे बाजी। तो फिर ये भी केमिकल। केमिकल फ्रॉम फार्म्स, फॉर्म इनसाइड। यही आंसर है इसका। ठीक है, यहाँ पे आप लिखोगे केमिकल्स फ्रॉम फार्म्स। ये एग्जाम्पल दी हुई है उसने एग्रीकल्चरल पोल्यूशन। समझ आया कि नहीं? जी जी जी। आगे बताओ। हाउस होल्ड रबिश। चलो, इसमें हाउस होल्ड रबिश की उसने फ्रिजेस वगैरह ये तो ऑलरेडी लिख दिया है ना उसने। अब आप ये देख लो कि आपको टेक्स्ट ए में जहां हाउस होल्ड रबिश घर का कूड़ा, उसकी क्या एग्जाम्पल आपको शायद ए में मिल जाए। आखिरी लाइनों में देखो, हाईलाइट कर दो। एक सेकंड जी, आंसर करती the master environment causes pollution with chemical. Pollution is scary to say because it's bring job listen to you. भाजी हाईलाइट कर दें क्यों? घर की तो इसमें कोई तो है ये, टेक्स्ट ए में है, कहाँ पे? एक सेकंड में देखो। एंड वाली दो लाइन है। Also people need to the liquid drink bottle and plastic bag would be such a problem if people use uh, recycle them. ये ड्रिंक बॉटल्स एंड प्लास्टिक बैग। जी, लेकिन चार वर्ड्स नहीं लिख सकते ना, तो कितने वर्ड्स लिखेंगे? कोई भी इनमें से दोनों में, दोनों भी लिख सकते हो, लेकिन फिर उसको पता है बीच बॉटल में बॉटल या
ड्रिंक एंड बोतल लिख दें या प्लास्टिक बैग लिख दें? हाँ, दोनों में से कोई भी लिख देना, ठीक है। अगर लिखना होगा ना दोनों, तो पता है कैसे लिखना है? ऐसे स्लैश डाल के बीच में कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन मैं 4 वर्ड से ज्यादा नहीं लिख सकता, आपको जो सही लगता है, या ये वाला सही करते हो या ये वाला सही। हम्म। आगे 28 है एग्जाम्पल। अब ये तो बहुत ही आसान, पैराग्राफ बी में है। उन्होंने स्पोर्टिंग डेवलपिंग फैसिलिटी, और हाँ, स्पोर्टिंग फैक्ट्री एग्जांपल। um factories because museum of the cities नहीं, वो industrial area स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स की in क्या the एग्जाम्पल दी हुई है स्पोर्ट्स की? sports की पहले वाले में ये कॉल ने दी हुई है स्पोर्ट्स, क्या ये एग्जाम्पल? अ, अ, इसका वाटर स्पोर्ट्स सेंटर पीपल डूइंग लाइक दिस दैट ये फ्रॉम किकिंग कैकिंग तो कैकिंग जो जो भी है वो स्पोर्ट है ना, आप मुझे बताओ कि स्पोर्टिंग फैसिलिटी की एग्जाम्पल। बता दो आंसर। सॉरी ये जिस तरह पहले में ही है वैसे तो, अ, फिर या तो ये वर्ल्ड ये आंसर तो नहीं बची वाटर स्पोर्ट्स सेंटर। सेंटर्स देखो, जो भी कोई सेंटर होता है वही सेंटर्स फैसिलिटी होती है ना, जैसे जिम होती है या स्विमिंग सेंटर होता है, या उसको फैसिलिटी बोलते हैं, यही बोलते हैं। जी उसने बोला एग्जाम्पल बताओ डेवलपिंग स्पोर्टिंग फैसिलिटीज की, वो है वाटर स्पोर्ट्स सेंटर। समझ आया कुछ? जी जी अब आगे कुछ नहीं बताऊंगी खुद। creating public eating place for example public eating places uh, ये रहा बाजी hopefully they closed at fast food place ये तो हो गया, लेकिन इस पे क्लोज नहीं, इस पे क्रिएटिंग पब्लिक ईटिंग प्लेसेस है, क्रिएटिंग। creating public eating place like some probably waterside cafes quite waterside cafes हाँ जी, that's the answer. You understand, right? Here you write water, waterside cafe. Right now 20, oh sorry. Now 20, 30 is also very easy. What could be example of things that could make it safer? making the riverside a safer place river bank नहीं, देखिए वो कह रहे हैं कि एग्जाम्पल मुझे बताओ कौन सी चीज इस्तेमाल की जा सकती है रिवर को सेफ बनाने के लिए, टू मेक इट अ सेफर प्लेस। uh, ये देखें ना ये बाजी
even little lighting. जी, लाइटिंग सही है। ठीक है, लाइटिंग भी हो सकता है। इसमें ना दो आंसर्स है ना, तो एग्जाम वो डाल के बीच में स्लैश तो सिक्योरिटी कैमरास भी लिख देना, दोनों ही सही है। समझ में आ रहा है कुछ? ये समझ तो आ रहा बाजी, है तो इजी है, बस थोड़ा समझ आ जाए तो। कोई नहीं, ये देखो सिर्फ सैंपल्स हैं, इसमें से ऐसा कोई भी किसी टाइप का आ सकता है, लेकिन मतलब सेम टेक्स्ट तो सेम नहीं होता, लेकिन क्वेश्चन टाइप सेम होते हैं। ये टाइटल सेम होता, सेम एज इट इज बाजी। पैटर्न तो ऑलमोस्ट सेम ही होता है अभी, लेकिन मुझे पता है कि आपको समझ आ रही है कि क्या है ये, उतना मुश्किल। अच्छा, अब ये वाले जो है ना, ये तो मुझे एक एक पढ़ते जाओ और साथ साथ में करके देखो। पढ़ के ना स्टेटमेंट में आपको पैराग्राफ खोल दूंगी, ठीक है, कि किस पैराग्राफ में है। आप पढ़ो। A big cleanup and three planting project are improve the river Vico. ये टेक्स्ट डी में क्लीन अप ऑन द रिवर विको। हाँ, ये वाला तो विको वाले में लिखा हुआ है, ये डी में लिखा हुआ है। इसमें से देख के ना खुद पढ़ के बताओ मुझे, सही है, ट्रू है या फॉल्स है। Yes. Could you please tell me if it's true or false? The first one, 21st. It is, Is it true or false? 1 second. Is this true बाजी? हाँ, ट्रू है, लेकिन क्यों ट्रू है? क्योंकि ये क्लीन करते हैं रिवर विको को, और ये इम्प्रूव किए इन्होंने। हाँ, ये तो है, लेकिन मेन पॉइंट है इसमें। सॉरी। Yes, this is correct. A is true. Waste paper and cardboard are using serious population in the river Nile. Text A में से है। The river Nile causing health problem in the city. Okay. अच्छा, you have to look for the word cardboard, but we don't really see the word cardboard in any paragraph written. Yeah. Neither would Yes. somebody put waste paper. They have talked about chemicals, right? So, ये जी जी कार्डबोर्ड समझ तो लग गई बात। कार्डबोर्ड तो फिनिश प्रोडक्ट होता है ना, वो कोई वो वेस्ट थोड़ी होता है, वो तो बना हुआ प्रोडक्ट होता है। जी बाजी। ये भी ट्रू है बाजी। फॉल्स है। ये फॉल्स है। हम्म। उन्होंने causing बोला है, serious। अगर पढ़ो देखो, वो कहते हैं पुटिंग वेस्ट इनटू द रिवर, लेकिन जी। कार्डबोर्ड जो होता है वो तो प्रोडक्ट होता है ना, वो वेस्ट तो नहीं होता। uh, uh, some people don't go to the river Lamb because they are worried about safely. हाँ, ये रिवर लैम वाला है, सी में से। Stop stop a lot of people going there. So ये ट्रू है बाजी। ये people don't go the river Lamb because they are worried about safely. जी, ये बिल्कुल ठीक है, ये ये सही लिखा है। fear stop a lot of people. सी इज ऑल्सो लोग ट्रू। डरते थे वहां लाइट। नेक्स्ट डी। and the water quality on the river Tolling स्टोलन। has continued to the water Tolan.
yearly report on the result of population. Water quality. ये yearly report on the false है बाजी false क्यों है? water quality. The water quality on the river Tolan has continued to improve. जी false है। ये कहते हैं जी, तो ये देखें, ये ईयरली रिपोर्ट ऑन द request of population. A big cleanup project on the river Bicol takes place once a year. ये टैक्स उसमें शायद डी में भी बाजी, The big cleanup project, yes. ये देखें ये डी में है. In the yearly big cleanup on the river Vico. A big project takes place. ये ट्रू है. True है. Okay, E is also true then. On the river token rubbish has increased more than form of factory population. So factories are Count कर लो ना, rubbish 14% है और 5.5% and 6.4% waste from factory. So which one is greater? sorry बाजी वो कह रहा है कि जो रबिश on the रबिश जी जी ये केमिकल जो है फार्म का ये 5.5% है और रबिश 14% है. तो रबिश ज्यादा है. ऑन द रिवर टू इंक्रीज रबिश. जी तो जी फिर true हुआ रबिश या तो false फिर हुआ? ज्यादा है. ये ट्रू हुआ. मनी नीड टू बी says for improvement to the river dam. जी, अब ये है कि money needs to be raised. मनी ये तो ट्रू है. F ट्रू समझ में आ रहा है क्यों है? जी के ये पैसे इन्होंने ज्यादा लिए थे उससे नहीं नहीं, F की बात कर रही हूँ. इंक्रीज करते रहे. नहीं, F की बात कर रही हूँ. F रबिश ज्यादा है बाकी सारी पोल्यूशन से. जी जी हाँ, जी हाँ जी. आगे बताओ. सी में है कि क्या उनको पैसे चाहिए? मनी नीड्स टू बी रेज्ड बाय इम्प्रूवमेंट्स फॉर इम्प्रूवमेंट्स टू द रिवर लैम्प. आपको क्या लगता है कि मनी चाहिए रिवर लैम्प को इम्प्रूव करने के लिए? इधर तो पहली वाली सबसे टॉप वाली लाइन पे चले जाओ, ब्लैक में लिखी हुई है. I'll always throw the river would to be great की so ये the city is getting million from the government to improve the river dam. How should it spend the money? यही वजह लाइन कर रही हूँ. लेकिन ये है कि पैसे तो उनको चाहिए ही नहीं. पैसे तो उनके पास ऑलरेडी हैं. The city is getting millions from the government. They don't need money. They just जी need suggestions to execute and learn. Okay? ये सॉरी ये फॉल्स है. उनको पैसे चाहिए नहीं है, उनके पास ऑलरेडी हैं, गवर्नमेंट देती है. जी गवर्नमेंट ये लूट लूट के देती अब वो जैसे आप है द कहते हैं पीपल आखिरी तो सही होगा, सही ही होगा. तो मेरे ख्याल से आखिरी ठीक इसलिए क्योंकि द पेपर फैक्ट्री नियर द रिवर मेल इज एन इम्पोर्टेंट लोकल एम्प्लॉयर. क्या मतलब है इसका? क्यों है ये? क्यों लिखा है ये उन्होंने? लोकल एम्प्लॉयर का मतलब क्या है इसमें से देख के बताओ.
किस में से देख के बताओ मुझे। टेक्स्ट है। मेल हेल्थ प्रॉब्लम, cause health problems, local factory have been supporting putting। ये एम्प्लॉयर इसलिए जरूरी है क्योंकि ये फैक्ट्रीज को जो है the factory working there। लिखा हुआ है कि एम्प्लॉयर का मतलब होता है जॉब देने वाला। किधर लिखा है? जॉब देने वाला ये वर्कर वर्कर नहीं होता। कोई एम्प्लॉय होता है, ये एम्प्लॉयर। ओके ओके। हेलो। जी जी बाजी। हाँ तो ये सही नहीं पता चला अभी भी। ये लाइन लिखी हुई है यहाँ नहीं पे कि जो ये है ना, बिकॉज इट ब्रिंग्स जॉब्स टू द सिटी। ये जो फैक्ट्री है ना, ये सिटी, ये जो फैक्ट्री है ये लोकल लोगों को जॉब्स देती है। ठीक है। जी जी। ये जो लॉज ब्रेक करती है ना, तो इट बिकॉज इट ब्रिंग्स जॉब्स टू द सिटी, मतलब एम्प्लॉयर है लोकल एम्प्लॉयर। ये लोगों को हायर करती है, लोगों को जॉब्स देती है। समझ आया? जो पेपर जी जी फैक्ट्री बाजी। है। हाँ। तो ये आपके खुद ही आपने किए हैं एक, चलो मैंने किया है। जाऊंगी बताते जाना है, क्योंकि अब आपको याद हो गया कौन से पैराग्राफ में क्या है। अच्छा। Which paragraph makes negative comments about the activities of local people and businesses? कौन सा पैराग्राफ किसी नेगेटिव एक्टिविटी के बारे में बता रहा है, किसी बिजनेस की नेगेटिव एक्टिविटी के बारे में, और एक्टिविटीज ऑफ लोकल पीपल? कौन सा पैराग्राफ है नेगेटिव, बुरी एक्टिविटी? ए, बी, सी और डी? थोड़ी नेगेटिव ए ही है। नेगेटिव। ए में ही है वो लोकल फैक्ट्री जो वेस्ट डाल रही है। ठीक है। और लोग लोग भी गंदा कर रहे हैं ड्रिंकिंग बॉटल्स। और इस कौन सा पैराग्राफ जो है वो गुड न्यूज स्टोरी बता रहा है? ये तो आपको पता ही होगा। ए, बी, सी और डी? दानिश, रिवर विको की कहानी गुड जी। न्यूज स्टोरी है। कौन सा पैराग्राफ जो है वो ये शेयर बी। कर रहा है प्रैक्टिकल आइडियाज, जहां पे डिफरेंट लोग अपने आइडियाज दे रहे हैं रिवर को इम्प्रूव करने के लिए? वो कौन सा पैराग्राफ है? ए, बी, सी और डी? सी। ये भी ठीक है। कौन सा पैराग्राफ है जो कि कहता है कि पॉलिटिकल एक्शन होना चाहिए और पब्लिक एजुकेशन होनी चाहिए रिवर को प्रोटेक्ट करने के लिए? ये भी बड़ा इजी है। एजुकेशन। हम्म। ए देखो, डी तो टोलन वाला है, उसमें तो एजुकेशन से रिलेटेड कुछ है ही नहीं है। ठीक है। डी गुड न्यूज स्टोरी है, बिल्कुल। उसमें भी नहीं है। सी में सजेशंस हैं, तो ये भी कौन सा रह गया? ये रह तो वैसे बी गया है लेकिन बी कैसे रह गया? बी में तो कुछ भी ऐसा नहीं लिखा हुआ। ए में लिखा हुआ है कि नहीं पॉलिटिशियंस जो है उनको वही कह रहा हूँ। पॉलिटिकल, हाँ ए। और which paragraph shows some changing patterns in the state of health of a particular river? कौन सा पैराग्राफ जो चेंज आ रहा है, इंक्रीज या डिक्रीज आ रहा है हेल्थ में रिवर की, उसको बताता है? वो कौन सा है? ए है, बी है, सी है, डी है? पैटर्न जो होता है ना कौन वो सा ज्यादातर पैराग्राफ? तस्वीर में होता है। ये तो मुझे लगा शायद आपको याद हो गया। ये पैटर्न है इंक्रीज ये और डिक्रीज का। बी आंसर। जी जी तब कहने का मतलब समझ तो आ गई ना कि क्या है ये। जिसने थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा उसको तो वैसे जी भी जी याद हो जाए कि किस पैराग्राफ में क्या है। अब देखो, सीक्वेंस अगर याद रखोगे ना, जी पहले फिल इन द ब्लैंक्स करोगे, फिर ट्रू फॉल्स करोगे, फिर ये वाला करोगे ना, तो याद भी रह जाएगा कि अच्छा ये तो देखो, ये तो उसमें था, ये वाला तो उस पैराग्राफ में लिखा था। जी ओहो, डी नहीं है, सॉरी। जी जी। बी। बी बी बाजी।
आपने हाँ, दे दी। आंसर्स हैं ADCAB। समझ आ गई? जी जी। अब इसका जो मल्टी टेक्स्ट टास्क है ना, वो खुद से करके आना है। इंशाल्लाह बजट में ट्राई करूंगा। देखो टेस्ट तो ऑलमोस्ट आ ही गया ना, इसमें तो कोई मुश्किल वाली कोई चीज है ही नहीं। इतना मुश्किल टेक्स्ट है ये तो लोगों को समझ ही नहीं आता, लेकिन आपने कर लिया। चलो थैंक तो यू। Thank हाँ you. तो See you अल्लाह tomorrow. Goodbye. हाफ़िज़।